Good morning students. Once again I welcome you all in your own English class. Now this is your Neetu ma'am and I hope जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब समझ में आ रहा है. See बेटा, I have promised you कि I'll be teaching you from the very basic level because बच्चा अगर ये basic foundation, basic concept clear नहीं हुए तो आगे जो अपर या हाई लेवल के रूल्स हैं वो समझ नहीं आएंगे. So just pay attention on the basic or the concept first. Now we have started parts of speech, that is also known as fundamentals of English. Then parts of speech I have given you the detail about noun, pronoun, verb, adjective, adverb. तो यहाँ तक हम डिटेल कर चुके हैं. Today I will be completing preposition, conjunction, interjection, article so that आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक आइडिया हो जाए. उसके बाद वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दैट सो दैट अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन कनेक्ट टू मी और अगर समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी. ओके, तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द कंटिन्यूएशन पार्ट. नाउ yesterday we have done adverbs and I have told you कि adverbs gives us the detailing about verb, another adjective and another adverb. तो ये हम कर चुके हैं. We have done these sentences also कि कैसे एक adverb एक वर्ब की क्वालिटी बताता है, एक एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है और एक एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है. ये हमने कर लिया है. नेक्स्ट इज preposition. Now what are prepositions? Preposition shows the relationship between a noun or pronoun and another word. तो preposition वो word होता है जो noun की relation या pronoun की relation दूसरे word से दिखाता है. It relates noun with other words. Okay, now preposition often shows position or direction. कैसे? Now preposition अगर आपको पता हो तो preposition की spelling में ही ये दिया गया है preposition. तो preposition ये बताएगा कि noun का relation क्या है उसके बाद वाले word से. For example, the box is on the table. Now pay attention. The box क्या है? Noun. Is क्या है? Verb. The table क्या है? Again noun. Now see. On क्या है? On है हमारा preposition. अब ये preposition देखो दो rules. Preposition एक तो noun या pronoun के पहले लगेंगे. Second rule, preposition noun का रिलेशन बताएंगे दूसरे वर्ड से. नाउ सी, ये preposition कहाँ लगा है? ये noun के पहले. सेकेंड थिंग, preposition on क्या बता रहा है कि ये noun का रिलेशन इस टेबल से क्या है? वो बॉक्स टेबल के ऊपर है. तो जब भी preposition यूज होता है वो noun का रिलेशन बताता है दूसरे noun से या दूसरे वर्ड से. क्लियर? अब preposition के बारे में some more details, let's study. See, preposition it is used before noun or pronoun. Now see, the dog ran after the cat. ये noun, this is verb, after preposition the cat again noun. अब यहाँ पर preposition कहाँ यूज हुआ है? noun के पहले. Clear? Now this preposition is telling you the relation between these two words. क्या relation है? dog cat के पीछे 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 भाग रहा है. डॉग कैट के पीछे भाग रहा है. तो ये कैसे पता चल रहा है हमको? आफ्टर से. तो आफ्टर preposition is giving us the detail about this noun and the relation of this noun with this noun. कि preposition ये बता रहा है कि वो डॉग उस बिल्ली के पीछे भाग रहा है. क्लियर? नाउ सी, he came before me. Again, he pronoun, came verb, before preposition, me again pronoun. Now see, preposition कहाँ यूज हुआ? pronoun के पहले. preposition कहाँ यूज हुआ? noun के पहले. ये रूल क्लियर हुआ? The another rule कि preposition tells you the relation of noun
with the other words, noun or pronoun with the other words. अब यहाँ he came before me, वो मुझसे पहले आया, तो this word before is telling you the relation of he with me, कि वो मुझसे पहले आया. Clear? Now I have not met him from Monday. I pronoun, have not met verb, him pronoun. Again देखो ये pronoun, from is preposition, Monday is noun. अब preposition from कहाँ यूज हुआ? noun के पहले. अब अगर आपको प्रेपोजिशन के बारे में ये बेसिक रूल पता चल गया कि प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, तो सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज ना होके अपनी जगह बदल रहे हैं तो वो एरर है. ठीक है, तो ये ट्रिक्स ही याद रखनी है आपको. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अगर ये बेसिक रूल्स बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आगे जाके एरर्स ढूंढना इज नॉट अ बिग डील. ओके, नाउ सी, आई हैव नॉट मेट हिम फ्रॉम मंडे. मैं कब से नहीं मिली उससे? मंडे से. तो ये आई का रिलेशन बता रहे हैं कि कब से मैं उससे नहीं मिली हूं, मंडे से नहीं मिली हूं. So that means two things are concluded now from this, कि prepositions are used before noun or pronoun, and preposition tells us the relation of noun or pronoun with other noun or pronoun or with other words. Clear? ये sentences समझ में आ गए? Okay. Now see, prepositions. There are some prepositions in, on, under, next to, behind, in front of, between. तो थोड़ा सा preposition के बारे में जानते हैं. Now see, preposition in. Now preposition in use होता है किसी चीज के अंदर होने के लिए. Now see, are you able to see this box and the ball? Ball कहाँ है? The ball is in the box. The ball noun, the box noun. In क्या है? Preposition. तो प्रेपोजिशन के दो रूल्स, इन यूज हुआ है बॉक्स से पहले, नाउन के पहले, और इन रिलेशन बता रहा है बॉल और बॉक्स का. बॉल बॉक्स के अंदर है. सी, बॉल बॉक्स के अंदर है. तो इन प्रेपोजिशन इज यूज्ड टू डिनोट समथिंग विच इज इनसाइड इन इट, किसी कंटेनर के अंदर, किसी जगह के अंदर. ही इज इन द रूम. अगर मैं यहां लिखूं ही इज इन द रूम, तो किसी जगह के अंदर होने के लिए हम इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं. क्लियर? नाउ चेक आउट द नेक्स्ट. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. ऑन किस चीज के लिए यूज होता है? सी बच्चा ये याद रखना, ऑन यूज होता है जब कोई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है, उसके सरफेस को टच करते हुए, टचिंग अ सरफेस और बीइंग सपोर्टेड बाय अ सरफेस. अगर ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है तो ये पेन और मेरे हाथ का सरफेस टच हो रहा है. सो द पेन इज ऑन माय पाम. पेन मेरी हथेली के ऊपर है. तो व्हेनेवर एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से टच हो रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं प्रेपोजिशन ऑन से. तो जब सरफेस टच हो रहा है तभी हम यूज करेंगे ऑन. ओके, सो द बॉल इज ऑन द बॉक्स. ये बॉल इस बॉक्स के ऊपर है. दैट मीन्स दोनों का सरफेस टच हो रहा है, बीच में गैप नहीं है. सी द हैंड एंड द पेन. तो जब पेन हथेली के ऊपर है, दैट मीन्स नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, सरफेस टच हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. नाउ द बॉल इज अंडर द बॉक्स. अब अगर कोई चीज किसी के नीचे है, सी ये बॉक्स है और ये बॉल है, तो अगर उसके नीचे है तो हम बोलते हैं अंडर. अब अंडर लोअर दैन, दैट मीन्स किसी से कवर किया हुआ, किसी के नीचे. द कैट इज अंडर द टेबल.
द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब वो टेबल ने, अगर ये टेबल है और यहाँ कैट है तो ये टेबल ने कैट को कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, तो वो अंडर, द बॉल इज अंडर द टेबल। नाउ द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, नेक्स्ट टू मतलब उसके आगे, सी ये बॉक्स है, ये बॉल है, तो नेक्स्ट टू मतलब उसके आगे, उसके बाद, द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, द बॉय who sits next to me is absent today, तो जो लड़का मेरे आगे बैठता है या मेरे बाजू में बैठता है आज वो एब्सेंट है। तो नेक्स्ट टू मीन्स फर्दर, फॉरवर्ड देन, आगे या बाजू में, दैट इज नेक्स्ट टू, आगे या बाजू में। क्लियर? नाउ बिटवीन, बिटवीन के लिए एक रूल है बेटा, बिटवीन हमेशा हमेशा दो चीजों के लिए यूज होगा, ये याद रखना। अब ये बॉल ये और ये बॉक्स के बीच में है, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, तो याद रखना अगर बिटवीन है मतलब दो ही डब्बे होंगे, दो से ज्यादा डब्बे हैं तो बिटवीन यूज ही नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक ऑफ प्रीपोजिशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और एनडीए एग्जाम में इस रूल के ऊपर 100% सेंटेंस आता है, 100%। सो बिटवीन इज यूज्ड when total two parties are there, two things are there, then only between is used. For example, the ball is between two boxes. One more example, the property will be divided between two brothers. अब मैं ऐसे नहीं बोल सकती the property will be divided between 5 brothers. No, 5 है तो between use नहीं होगा, और यही सेंटेंस एग्जाम में आता है। तो एरर कहाँ है बेटा? बिटवीन में। तो अगर दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, दो पार्ट्स हैं, दो चीजें हैं, तो ही सिर्फ बिटवीन यूज होगा। दो से ज्यादा है तो यूज होगा प्रीपोजिशन अमंग। क्लियर? तो दो चीजों के बीच में, दैट इज बिटवीन, द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। नाउ सी अमंग, अमंग मीन्स बहुत सारों के बीच में, दो से ज्यादा है तो अमंग, दो है तो बिटवीन। द बॉल इज अमंग मेनी बॉक्सेस, बॉल बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में है। नाउ द स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में ये स्वीट्स बांटी जाएंगी। ओके, दिस इज द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। कितने लोग? दो। दिस इज द सीक्रेट बिटवीन अस, अब अस भी है मतलब दो लोग। नाउ दिस इज द सीक्रेट अमंग अस, अमंग यूज है मतलब दो से ज्यादा है। क्लियर? नाउ द बॉल इज अबव द बॉक्स। सी हमने अभी किया था ऑन, अब हम कर रहे हैं अबव। अबव मीन्स जहां सरफेस टच नहीं हो रहा। सी ये डिफरेंस जरूर याद रखना बच्चा। सी द डिफरेंस, ये बीच में जो गैप है, अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज है और दोनों का सरफेस टच नहीं हो रहा, बीच में गैप है। से यहाँ पर ये गैप दिख रहा है आपको, अगर बीच में गैप है तो हम यूज करते हैं अबव। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव मी, वो प्लेन मेरे ऊपर उड़ रहा है, दैट मीन्स बहुत हाइट का डिफरेंस है। द ब्रिज इज अबव द रिवर, तो रिवर के सरफेस से ऊपर ब्रिज है, दैट मीन्स बीच में गैप है। द बॉल इज अबव द बॉक्स, दैट मीन्स सरफेस टच नहीं हो रहा। जब ऑन यूज होता है तो सरफेस टच होता है, जब अबव यूज होता है तो सरफेस टच नहीं होता, ये याद रखना। क्लियर? अगर मैं बोलूं द पेन इज अबव द टेबल, एरर कहाँ है? कहाँ है एरर? अबव में। द पेन इज अबव द हैंड, क्या वो हैंड से ऊपर है? नो। तो क्या होना चाहिए? द पेन इज ऑन द हैंड। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और आगे जाके सारा पेपर इजीली सॉल्व करना है। डन विद दिस? नाउ अगेन, जैसे हमने अबव किया, दैट मीन्स सरफेस में गैप है, वैसा ही बिलो, बिलो और सी बिलो में भी सरफेस में गैप है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट बिलो। जैसा हमने अबव किया था, सी
above में there was a gap between the box and the ball, same way below भी यूज होता है जहां पर दो सरफेस के बीच में गैप होता है. सी द गैप. तो अगर कोई भी चीज का सरफेस नीचे वाली चीज के सरफेस से टच नहीं हो रहा तो वो बिलो होता है. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर फ्लोज बिलो द ब्रिज. नदी ब्रिज के नीचे बहती है. दैट मीन्स ब्रिज और नदी के सरफेस में बहुत गैप है. सी, लोअर देन समथिंग एल्स. द बॉल इज बिलो द बॉक्स. बॉल कहाँ है? बॉक्स के नीचे. डन. Now the next part of speech is conjunctions. Conjunctions, the very loyal thing, the loyal of all the parts of speech, because conjunction joins two phrases, two clauses, two sentences, two parts. वो कभी भी imbalance नहीं करते, सबसे वफादार. तो that is conjunctions. अब conjunctions and, but, or, since, either or, neither nor, therefore, so, that, not only but also, ये सब क्या है? कंजंक्शंस ही. नाउ अगर मैं आपको ये बोलूं, ये दो सेंटेंस दिए हैं. द चिल्ड्रन वांट टू प्ले इन द पार्क, इट इज रेनिंग. नाउ ये देखो बेचारे बच्चे, इनको यहाँ खेलना है, पर यहाँ क्या आ रही है? यहाँ तो बारिश आ रही है. अब अगर मैं आपको तीन ऑप्शन दूं, एंड, और, एंड, बट, क्या यूज करेंगे आप? क्या यूज करेंगे? देखो दोनों तरफ, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले इन द पार्क, इट इज रेनिंग. तो आपको ऐसा कंजंक्शन यूज करना है जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए. तो मीनिंगफुल बनाने के लिए यू हैव टू सी द रिलेशन ऑफ बोथ द सेंटेंस. बोथ द सेंटेंसेस आर कॉन्ट्रेरी. दैट मीन्स ऑपोजिट हैं. बच्चों को पार्क में खेलना है और बारिश हो रही है, तो क्या और यूज होगा? और गिव्स यू अ चॉइस. यहाँ चॉइस नहीं, हम ये बोल रहे हैं बच्चों को पार्क में खेलना है, पर या लेकिन बारिश हो रही है. तो लेकिन के लिए वी यूज बट. तो चिल्ड्रन वांट टू प्ले इन द पार्क बट इट इज रेनिंग. तो यहाँ यूज होगा बट. दैट मीन्स क्योंकि बारिश हो रही है, बच्चे पार्क में खेल नहीं पा रहे हैं. क्लियर? ओके. Now we come to the interjections. Interjections जिसके लिए हम यूज करते हैं wow, alas, bravo, hooray, ouch, oh, well done. तो ये सारे words they are known as interjections. अब interjections यूज होते हैं सेंटेंस में बिगिनिंग में. interjections सेंटेंस के मूड को बताते हैं. interjections सेंटेंस के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर? सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए. नाउ हियर आई कंप्लीट द बेसिक इंट्रो ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो बच्चा जितना पढ़ा है उसके ऊपर क्या एक्सरसाइज और कैसे करेंगे? लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. So students, we have learned all the parts of speech in today's video. Now, as I have promised you, I'll give you a new word every day. So today's word is hospitality. Hospitality, yes, hospitality. Now hospitality hospital से different होता है. Hospital is a place where your care is taken. जहाँ आपका ध्यान रखा जाता है, जहाँ आपकी तबीयत का ध्यान रखा जाता है. तो hospital अलग. Hospitality means मेहमान नवाजी, मीन्स खातिरदारी, मीन्स आवभगत करना. तो हॉस्पिटल वर्ड से बना है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी इज अ क्वालिटी, इज एन एडजेक्टिव. हॉस्पिटल इज अ नाउन. तो हॉस्पिटैलिटी मीन्स खातिरदारी करना, मेहमान नवाजी करना, आवभगत करना. तो इफ आई यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर हॉस्पिटैलिटी. योर हॉस्पिटैलिटी इज ऑसम. योर हॉस्पिटैलिटी is the best. तो hospitality means किसी की आवभगत करना. So all this for today. We'll meet tomorrow with some new words, with some new concept. Just take care of yourself and study what I have taught you. Bye bye and have a nice day.